Hi kids, welcome to your EVS class. And once again, I'm your digital mentor Ananya back with the new lesson of your book that is Mapping the Neighborhood. आज हम हमारे नेबरहुड के बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे और पता करेंगे कि किस तरीके से हम नेबरहुड को मैप करते हैं, यानी कि किस तरीके से हम लोकेशंस फाइंड आउट करते हैं. ऑलराइट, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. So let's begin this lesson. Before we start, let's do the get set go. The journey of 1,000 miles begins with a single step. This is a very very famous quote. Now let's learn what all we are going to cover in this chapter. We are going to take about landmarks, wind directions, map symbols, map scale, and drawing a map. Okay, so let's begin. We have read that the area and places around our homes form our neighborhood. हमने फिर पुरानी क्लासेस में पढ़ाई है कि हमारे आसपास का जो एरिया है, घर के आसपास का, उसको हम नेबरहुड बोलते हैं. These places could include a park, a shopping mall, a school, a hospital, a market, a police station, an ATM or a bank. ठीक है, तो ये जो एरियाज़ हैं ये कोई भी एरिया हो सकता है, ये कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, अब हम इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स के बारे में पढ़ेंगे. लैंडमार्क आर इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर प्लेसेस और बिल्डिंग्स इन अ सिटी, टाउन और अ विलेज. They help us to identify the correct route to our destination. A landmark may be man-made or a natural one. यानी landmark natural भी हो सकता है या man-made भी हो सकता है. Alright? और ये किसी भी तरीके का हो सकता है. स्कूल भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, ठीक है, हॉस्पिटल हो सकता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनीथिंग. A school, a bank, a hospital, a railway station, an airport, a holy place, or a monument are some important man made landmarks that help people to find their way to their destination. Now, look at the picture here. Here, you will see a delivery boy is asking, Madam, please let me know any landmark near your house. यानी आपके घर के आसपास कोई landmark बता दीजिए. Okay? Now, before we move further, there is an exercise. You need to do this activity. Pause and do this activity with your classmates. You have to basically turn wise, take turns in your class and tell your classmates about an important landmark near your school or near your house. ठीक है, see, take turns and tell your classmates any one landmark near your house. It can be a building or even a natural thing like a banyan tree or a park. ठीक है, तो आपके घर के आसपास जो भी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है उसको समझाते हुए आपको अपने फ्रेंड्स को अपने घर का लोकेशन समझाना है. ठीक है, अब आपके पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में. A route is explained with the help of direction. Direction is the course that must be taken to reach a destination. There are 4 directions: north, south, east and west. इनको हम cardinal directions भी बोलते हैं. We can find directions with the help of the rising sun. यानी जिस तरफ से सूरज उग रहा है उसे हम ईस्ट बोलते हैं, उसका ऑपोजिट साइड जो है वेस्ट होता है. The sun rises in the east and sets in the west. If you stand straight and face the east from where the sun rises, then west will be behind you. Stretch your arms. और इसी पोजिशंस पे आप अपनी बाहें फैला लीजिए, हाथों को फैलाइए. Then you will see that your left arm will point towards the north. जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ की तरफ है और जो आपका राइट हैंड है वो आपका साउथ की तरफ है. ठीक है, and your right arm towards the south. Like see this boy in this way. You can find out the directions. All right. अब हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में. मैप्स बहुत कॉमन है और आप सभी ने देखे हैं. कभी भी कोई इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन या प्लेस को अगर हमें अच्छे से समझना है या पता करना है तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हम करते हैं मैप लोकेशन. राइट, वो मैप्स को ही देखते हैं हम ताकि हमें पता चले. और जिस बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं, बुक ऑफ मैप इज ऑल्सो नोन एज एटलस.
A map is a drawing of a region or an area on paper. पेपर पे जब हम किसी रीजन या किसी एरिया को ड्रॉ करके लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, दैट इज मैप। इट मे बी ऑफ द वर्ल्ड, अ कंट्री, अ सिटी और अ नेबरहुड। A map represents simple visual information about a place. It helps people to travel to new places within their neighborhood, city, or another city. It gives them information about the location of different places that they wish to see. Okay? Now let's move to Factopedia. The study and the process of making maps is called cartography. यानी जो लोग मैप्स को स्टडी करते हैं या फिर जो मैप्स बनाते हैं, ये जो प्रोसीजर है बनाने का या स्टडी करने का, इसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। द पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर, और जो इसे बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। ओके? Different symbols are used to highlight mountains, forests, river, airports, bus stands, temples, building, etc. on a map. अब मैप में अलग अलग जगहों को दिखाने के लिए आपको अलग अलग साइंस और सिंबल्स देने पड़ते हैं, क्योंकि एक जैसे साइन अगर दे देंगे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और आप अपनी डेस्टिनेशन तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग सिंबल्स दें, राइट? See, this is the map of our country. Let's move further. अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में। अभी अभी हमने पढ़ा कि मैप्स को बेहतर बनाने के लिए सिंबल्स देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए कुछ फेमस या पॉपुलर सिंबल्स के बारे में जानते हैं। The symbols on a map can be images, colors, letters or numbers that represent something that cannot be otherwise shown a map. These symbols and their meanings are usually given in a box called a legend. ठीक है, यहाँ पर एक की रहता है, एक लेजेंड रहता है, दिस इज लाइक दिस, इसको हम लेजेंड बोलते हैं। इसमें कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है वो लिखा रहता है। If the map is colored, we can read in the legend what color represents, what each color represents basically, कि कौन सा कलर किस जगह या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीन और येलो कलर का बहुत यूज़ हुआ है, तो हर एक कलर को रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि कौन सा कलर क्या चीज़ दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राउन रिप्रेजेंट्स अ डेजर्ट एरिया एंड ब्लू रिप्रेजेंट्स अ वाटर बॉडी। कुछ कलर्स जो बहुत कॉमन है मैप्स में, जैसे ब्राउन कलर जो है वो यूजुअली डेजर्ट एरियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसी तरीके से ब्लू कलर्स के शेड्स जो है वो वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। Sometimes symbols help the traveler to find his destination, as it might prove to be the landmark to locate the destination or the destination itself. तो symbols के थ्रू जो ट्रैवलर है, जो ट्रैवल कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत ही ईजीली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। ऑलराइट, अब हम आते हैं मैप स्केल पे। सी चिल्ड्रन, मैप इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। पेपर पर छोटे स्केल पे रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। एक छोटे से पेपर में एक बहुत बड़े एरिया को रिप्रेजेंट हम तभी कर सकते हैं जब हम साइज को रिड्यूस कर दें। इसीलिए मैप जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक मेजरमेंट और स्केल को ध्यान में रखते हुए मैप्स को ड्रॉ करना पड़ता है। तो आइए मैप स्केल को बेहतर तरीके से समझते हैं। Like some places are symbolized by images, letters or colors, distances on a map are shown by a map scale. A scale helps us to calculate the accurate distance between two places, यानी दो जगहों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हम उस स्केल के थ्रू जान सकते हैं। For example, in a map the scale is given 1 centimeter is equal to 100 किलोमीटर, यानी मैप पर 1 सेंटीमीटर जितनी दिखा रहा है रियलिटी में वो 100 किलोमीटर्स है। तो अगर आपको मैप में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है कि आपको 1 सेंटीमीटर चलना है, तो इन रियलिटी आपको 100 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा डेस्टिनेशन मिलेगा। ठीक है, मतलब दो जगहों की डेस्टिनेशन में 100 किलोमीटर की दूरी है। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन मैप इज 4 सेंटीमीटर। जो चीज़ मैं अभी आपको समझा रही थी कि अगर मान लीजिए हम ऐसा कहें कि दो पर्टिकुलर प्लेसेस है, एक ए पॉइंट है
और एक बी पॉइंट है, और मैप पर ये जो है 4 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर अगर 100 किलोमीटर्स के इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पर जो लोकेशन है और यहाँ पर जो लोकेशन है, इन दोनों के बीच का रियल में, एक्चुअल में डिस्टेंस होगा 400 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैप्स पर काम करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। Pair and share. Before we move further, you need to pair up with your friends and classmates और उनके साथ इन questions को discuss कीजिए। Direction is the course that must be taken to reach a destination. Very true. Landmarks are important points in a city. क्यों हैं वो discuss कीजिए। Legends are symbols used in map. इसको भी आप अपने फ्रेंड्स को और बेहतर तरीके से इन्फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज अब आप इनके बारे में जान चुके हैं। लेट्स मूव फर्दर, सीखते हैं मैप को ड्रॉ कैसे करना है। बने बनाए मैप्स तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन कभी अगर आपको अपने फ्रेंड को मैप ड्रॉ करके कुछ समझाना पड़ा या अपने किसी रिलेटिव को समझाना पड़ा, तो आप कैसे करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ मैप। अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ एनी एरिया। व्हाइल ड्रॉइंग अ मैप, बी केयरफुल अबाउट द डायरेक्शंस। आपको डायरेक्शंस का बहुत ध्यान रखना है, साथ ही में ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट द स्केल टू बी यूज्ड। किस स्केल को कितना आपको रिप्रेजेंट करना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीप इन माइंड द सिम्बल्स टू बी यूज्ड ऑन द मैप एंड मेक अ लेजेंड शोइंग द मीनिंग ऑफ द सिंबल यूज्ड। आपने जो भी सिंबल, जिस चीज़ को, जैसे पेड़ को दिखाने के लिए अगर आपने स्क्वायर बनाया है या ट्राइंगल बनाया है, इसी तरह से बिल्डिंग को दिखाने के लिए अगर आपने रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाया है, तो जो भी सिंबल आपने जिस भी लैंडमार्क के लिए यूज़ किया है उसको एक लेजेंड में डिस्क्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो आपका मैप देख रहा है उसे समझने में आसानी हो। Similarly, one needs to look at the legend to understand what each symbol on map represents and also check the map scale to find the distance between two places. ये भी ज़रूरी है उतना ही कि जब आप मैप को डिज़ाइन करें और जो आपका मैप पड़े वो डायरेक्शंस को, सिंबल्स को और मैप स्केल को बहुत अच्छे से देखें, अदरवाइज कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैप्स एंड किस तरीके से हम अपने नेबरहुड में अलग अलग प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। लेट्स क्विकली गो थ्रू द पॉइंट्स टू पॉन्डर। Direction is the course that must be taken to reach destination. There are 4 directions: north, south, east and west. A map is a drawing of a region or area on paper. Different symbols are used to highlight mountain, forest, rivers, airports, building, temples, bus stands, etc. on a map. A map scale helps us to calculate the accurate distance between two places. So I hope children that you have understood all these points and you will be remembering them very carefully. Now it's time to move towards the exercises. So let's begin the exercise. Let's do a quick check whether we have understood the chapter properly or not. शुरू करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन से। फर्स्ट वन, डैश हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रूट। करेक्ट रूट हमें कैसे पता चल सकता है? करेक्ट रूट हमें इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क से पता चलता है। इनफैक्ट हम मैप्स के थ्रू, ये सारी ही चीज़ें मैप में होती हैं और मैप्स के थ्रू ही हम करेक्ट रूट पता कर पाते। तो मैप, अ रूट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ direction, scales, maps या landmark. A route is explained with the help of directions. सबसे पहले directions को importance देंगे हम। A dash is a drawing of an area. Map is a drawing of an area. A dash helps people to travel to new places. Maps जो है वो लोगों को नई जगहों पे ट्रैवल करने में मदद करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं मैडम। लेट्स मूव फर्दर। लेट्स डू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ मैप इज द डैश ऑफ अ रीजन और अ एरिया ऑन पेपर। इट इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ रीजन। ठीक है, राइट। Second, dash are important places or buildings in a city, town or village.
So landmarks, right? Next, the sun dash in the east and sets in the west. So sun rises in the east and sets in the west, right? The study and the process of making maps is called cartography. The area and the places around our homes forms our neighborhoods, right? So with this, we are done with all these fill in the blanks. Now it's time to move towards the next exercise. Exercise number C, give one word answers for the following. इन्हें अच्छे से स्टडी करना है और एक एक शब्द इनके लिए लिखना है. It helps us to identify the correct route to our destination. Direction. It means any area near or around our house, that is a landmark. वन हु मेक्स द मैप, जो लोग मैप बनाते हैं उनको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूजुअली स्केल का यूज़ करते हैं. इट रिप्रेजेंट्स विजुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस. सिम्बल्स. Right? So I hope you have understood. Now let's do true and false. Most neighborhoods have some important places called legends. This is false. Sometimes symbols on a map help a traveler to find his destination. This is true. We can also find directions with the help of sunrise and sunset. Yes, it's absolutely true. And a map scale helps us to calculate the accurate distance between two places. This is also true. So children, with this we are done with all the exercises. I hope you have understood them well, and we are done with another chapter of your EVS book. So I hope to meet you soon again with some new videos of your EVS book. Stay tuned for the upcoming videos because the upcoming videos would be more engaging and more interesting. Till then, do take care of yourselves. Have a wonderful day ahead.